ठीक है, चलो पहले आप कर लो, हम इंशाल्लाह डिवाइडेड टाइम से सारों को मिल जाएगा मौका। इकरा, सना और निदा है। ठीक है। चलो पहले सना कर लें फिर इकरा कर ले। आई होप इकरा डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। नो मैडम, हम्म। कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके सना, आपके पास कोई सिनेरियो है या मैं बता दूं आपको? जी सना। जी डॉक्टर, आप कोई सिनेरियो सिनेरियो है बताएं। आपके पास? मैं दे देती नहीं हूँ। नहीं। सो सो ठीक है, सो पेशेंट हमारा पीआईएस का टॉपिक है आज की क्लास का, ठीक है। सो पेशेंट इज एक्चुअली, हम कर लेते हैं प्राइमी ग्रेविडा। पेशेंट इज प्राइमी ग्रेविडा एंड शी इज एट 32 weeks of gestation and she comes with a complaint of high blood pressure as well as her fundal height is low for her gestational age. How will you manage her? हाइट ऑफ फंडा इज लो। ओके। हम्म। जी, स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेते हैं। मैं चाह रही हूँ पीआईएच से रिलेटेड हम 3-4 सिनेरियोस कर लें ताकि टॉपिक पूरा कवर हो जाए, जैसे हमने लास्ट टाइम डायबिटीज में किया था। जी। जी सना, प्लीज स्टार्ट करें, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर सना, आपका टाइम कैलकुलेटेड है, अब आप चाहे सलाम करो या जो करो, यू द टाइम इज योर्स। अब आप प्लीज स्टार्ट इट। mutual जी। introduction, I will take the demographic detail by asking that the name, age, parity, marriage since and the last LMP to calculate the period of the gestation and the estimated date of the delivery. Then I will ask about her the since how long they have diagnosed that increased blood pressure and onset duration and what medication she used and is she frequently monitor the blood pressure or not. Then I will ask about her the any symptoms of the headache, blaring of vein, nausea, vomiting, epigastric pain, and pedal edema notice or not. Then I will ask about her the how is the fetal movement, pattern of the growth, and then I will ask about her the pregnancy history, is she planned or unplanned, spontaneous conception. ठीक है, गुड। जी सना, बोलते जाओ। सना, प्रोबेबली सना का डिस्कनेक्ट हो गया शायद, आई डोंट नो। सो देख लें। हेलो सना। चलें तब तक फिर हम जी। Hello, hello. Any जी जी, आवाज okay. आए। Then in first 3 months, is she any history of the flu fever rash? Any is she taking folic acid or not? Then a dating scan done in which the number of the fetus and an only scan done or not? And is she taking iron, calcium, and any start of the tablet low dose. जी। आई थिंक जी सना, सना का शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। हेलो डॉक्टर, आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोलते हेलो। जाओ। जी जी, आप आगे कंटिन्यू ओके। करें, ठीक है, डूइंग गुड, हाँ जी। Then I will ask about her the last scan in which what was the any pattern of the growth, any amount of and amount of then I will ask about her the past medical history of the concern like diabetes, any autoimmune disease, any chronic kidney disease, past surgical history of the concern, any family history of related hypertension, any drug हम्म। allergy or drug addiction, and how's the support system at home. Then I will ask about her, then do the general physical examination to calculate the BMI, monitor vital, blood pressure, respiratory rate, temperature, pulse, uh, uh, anemia, thyroid examination, chest examination, and per abdominal examination
to calculate the height of fundus, presenting part, lie, and the amount of liquor, any abdominal wall edema, sacral edema, or the pedal edema. And I will also check the reflexes. And then move on the investigation. Complete blood count with the recent date and time. I want to know about hemoglobin level, total leukocyte count, and the platelet count. OGTT done or not, and the HP surface antigen anti-HCV, midstream urine to check the any leukocytes, any proteinuria, any nitrites, any pus cells. Then any LFTs, RFTs done. If the hello, hello. सना आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें प्लीज. Protein, okay. If there is a proteinuria is Good. +1, then I will ask about the protein creatinine ratio, LFTs, RFTs done or not, and any dating scan, anomaly scan, and the recent scan, in which I want to check about the estimated fetal weight, any amount of liquor, and AC, any female length to check the IUGR, any. Then any treatment she is taking up till now, and any investigation she want to share with me. ठीक है. So good. अच्छा, you were good सना. अभी तक का हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो आपने किया, क्योंकि जो फर्स्ट हमारा आज का सिनेरियो है उसमें बेसिकली हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन पे जरा ज्यादा डिस्कस कर लेंगे, बाकी के सिनेरियोज में हम मैनेजमेंट्स कर लेंगे. सो हिस्ट्री वगैरह ठीक थी, बट थोड़ा सा रिस्की था पास होना इसमें. हालांकि आई थिंक शी डिड नॉट मिस मच, बट वही बात है कि पीआईएच भी एक ऐसा टॉपिक है कि उसके अंदर आपका जब तक आप बहुत अच्छा एक्स्ट्रॉर्डनरी तौर पे नहीं परफॉर्म करोगे तब तक कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि आपके मार्क्स और उस पे फिर आए. इसके अंदर देखो, जब सना ने देखो द सिनेरियो वाज प्राइम, बड़ा आसान सा सिनेरियो था, बड़ा बेसिक सिनेरियो इससे रिलेटेड. इट वाज प्राइमरी ग्रेविडा, 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. और साथ मैंने कहा कि इसको शी इज हियर विद हाई ब्लड प्रेशर वैल्यू एंड फंडल हाइट इज लो फॉर द जेस्टेशनल एज. असल में इसके अंदर दो चीजें जो कवर करनी है. हिस्ट्री जो है ना वो अब देखो, जब प्राइमरी ग्रेविडा है और पीआईएच है, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर पीआईएच की, अब जब हमने हिस्ट्री साथ साथ लेनी है, सना का पैटर्न बिल्कुल ठीक था कि उसने प्रेजेंट सिम्टम्स को लेके चली. देन शी टॉक्ड अबाउट द होल प्रेगनेंसी हिस्ट्री एंड देन शी टॉक्ड अबाउट द रिस्क फैक्टर्स व्हिच हैव कॉज्ड इट, और फिर अब प्रेजेंटली उसके लिए क्या क्या कर रही है वो. लेकिन आई थिंक शी मिस्ड टू टेक हिस्ट्री रिलेटेड टू द डिक्रीज्ड फंडल हाइट अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज. यानी कि अगर 32 वीक्स है तो फंडल हाइट कम है, तो उसको एलैबोरेट नहीं किया. दूसरी चीज ये कि प्राइमरी ग्रेविडा के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मजेदार तरीके से नहीं हिस्ट्री में बोले. प्राइमरी ग्रेविडा की जब बात हो रही है तो सबसे ज्यादा जो कॉमनेस्ट कॉज है प्राइमरी ग्रेविडा में ही पीआईएच का, वो है टीन एज. ठीक है. सो उससे एज वाज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द ऑटोइम्यून डिजीज एंड द किडनी डिजीज, शी शुड हैव टॉक्ड अबाउट द फैमिली हिस्ट्री फर्स्ट, कि उसकी बहनों में या उसकी मदर में पीआईएच की हिस्ट्री तो नहीं रह चुकी, या कोई क्रॉनिक हाइपरटेंशन की हिस्ट्री इन हर मदर और फादर तो नहीं है. तो फैमिली हिस्ट्री को भी प्रॉपर तरीके से एलैबोरेट करके अगर नहीं पूछा तो फिर वो भी ठीक नहीं है. तो उसके अलावा ये कि देन मैडम फैमिली हिस्ट्री में हम स्मॉल बेबीज का भी पूछ सकते हैं ना, कि आपकी फैमिली में स्मॉल बेबीज का सॉरी क्या फिर से कॉन्स्टिट्यूशनली. पूछिएगा जी इकरा. मैडम हम फैमिली हिस्ट्री में स्मॉल बेबीज का भी पूछेंगे ना, क्योंकि वो मैं सिंपीजियो आयुष याद फंडल में आ हाइट. रही हूँ. एक्चुअली ठीक इसके है. अंदर कॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन का केस है. इट वाज नॉट ओनली अ सिंपल केस ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. इसके अंदर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज भी मैंने दे दिया, क्योंकि एग्जाम में जो भी हाइपरटेंशन आएगा वो सिर्फ हाइपरटेंशन तो नहीं होगा. मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो पेशेंट वार्ड में एडमिटेड होता है ना, फिर और आपके एग्जाम में वो आएगा. तो आप उसको और इस वक्त जो हिस्ट्री सना ने ली पीआईएच के लिए इट वाज ओके. इवन सिर्फ पीआईएच के लिए भी वो रिस्की थी पास होने के लिए. लेकिन ये तो दो सिनेरियोज थे उसमें. तो देखो, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज या स्मॉल फंडल हाइट अगर आ रही है तो उसमें तो लीकिंग का भी तो पूछे ना. उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी का पूछे, उसके अंदर एनॉमलीज को रूल आउट करें,
मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स दैट नीडेड टू बी रूल्ड आउट। और फिर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि 32 वीक्स पे वो है, IUGR है, उसे डेक्सा कवर मिला या नहीं, उसकी फीटल मूवमेंट्स कैसी हैं, उसके सीरियल ग्रोथ स्कैन कैसे हो रहा है, हर टर्म जो आप बोल रहे हो ना वो इम्पोर्टेंट है। शी सेड कि मैं रिसेंट स्कैन पूछूंगी और उससे मैं सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ उसमें पता करूंगी। मतलब आई डोंट नो रिसेंट स्कैन पे सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब है। एक स्कैन के ऊपर तो उस वक्त की ग्रोथ पता चलती है, आप हमेशा सीरियल ग्रोथ स्कैन्स कराते हो टू सी द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो आप जो भी टर्म वहां बोल रहे हो वो ऐसी टर्म है कि जो शायद आपको पास या फेल करा सकती है। तो अगर आप रिसेंट स्कैन पे सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ का टर्म यूज करोगे तो उससे ये पता चलेगा कि ये एक ऐसी ऑब्स्टेट्रिशियन है जिसको यही नहीं पता कि ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन पे क्या देखना है। तो द थिंग इज के इसलिए आपने बहुत ही विजिलेंट और सही तरीके से, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, इवन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स व्हिच आर मोर कॉमन। वहां कोई आप ड्राइंग रूम टॉक तो हो नहीं रही कि आप एग्जामिन, आप वहां पे अपनी फ्रेंड के साथ तो कोई बात कर नहीं रहे कि आप हैपैजेडली कुछ भी बोल दो। आप रिस्क फैक्टर्स भी हैपैजेडली नहीं बोलोगे। आपने उसको उसका जो कम रिस्क फैक्टर है उसे एंड पे बोलना है। जो कॉमनेस्ट है, एफजी, प्राइमरी ग्रेविडा, टीनेज है, मदर की हिस्ट्री, बहन की हिस्ट्री इन हर प्रेगनेंसीज क्या थी, जैसे जैसे हम ऑब्स्टेट्रिकल कोलिस्टेसिस में पूछते हैं। तो इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फैमिली हिस्ट्री, देन द फैमिली हिस्ट्री इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बड़ी एलैबोरेटेड तरीके से आपने बोलना है। And when you're talking about the complications in specific, इस वक्त वो PIH या हाइपरटेंशन के साथ है, सबसे पहले तो ये रूल आउट करें, क्योंकि जब आपका वाइवा खत्म होता है एग्जामिनर आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट टाइप ऑफ हाइपरटेंशन शी इज हैविंग इन प्रेगनेंसी, इज शी chronic hypertensive और शी इज हैविंग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो वो भी आपने अपनी हिस्ट्री में रूल आउट किया हो तो है ना, या इन्वेस्टिगेशंस में, यानी कि ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड बिफोर प्रेगनेंसी उसके पास कोई है। Has she ever got herself checked before pregnancy for the hypertension? अगर वो नहीं है तो we cannot say exactly कि it's PIH or hypertension in pregnancy. However, आपने इसी तरह जब आप present symptoms की बात कर रहे हो, they are very very important symptoms you're talking about, तो फिर you cannot miss any symptom like headache, vision, vomiting, epigastric pain, edema और blurring of vision और वो सारा जो आप बात कर रहे हो। और उसके साथ साथ आपने कि now why blood pressure is not controlled, और साथ साथ देखो जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हो आपके माइंड में ये भी चल रहा होता है कि मैं इस पेशेंट की मैनेजमेंट क्या करूंगी। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपने अगर एडमिशन करना है तो एडमिशन की क्या वो सारी कॉज हो, मतलब यू यू शुड बी वेरी क्लियर कि उसकी कॉज क्या होगी एडमिशन की। उसके अलावा ये कि अब एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट ऑफ PIH इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अंदर जब आप एग्जामिनेशन में सिर्फ अगर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हो तो उसके अंदर आपका वो आई थिंक आपने ठीक बोला, बट आई वॉज वेटिंग फॉर द ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। आपने ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन बहुत एलैबोरेटेड तरीके से बोला ही नहीं, हालांकि हमारा तो काम ही वो था। अ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में यू हैव टू टॉक अबाउट द पल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ पल्स एंड पैटर्न एज वेल। somebody says के रेडियो रेडियल और रेडियो फेमरल डिले की भी बात करें, देन टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर इन एग्जैक्ट, और फिर उसके अलावा दिस से कि ये दिस हाइपरटेंशन इज एक्चुअली कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सो देयर इज नो हार्म कि आप JVP भी देखो। और उसके अलावा फिर आप रीमा और वो सारा तो देखोगे जो आपने बोला था रिफ्लेक्सेस। कुछ लोग कहते हैं रीनल ब्रूई की भी बात करो वो, लेकिन ये वो चीजें हैं, रीनल ब्रूई ऐसी चीज जो कि एक्चुअली आपको फेल नहीं कराएगा, बट इफ यू डोंट टॉक अबाउट रिफ्लेक्सेस तो वो एक बड़ी चीज मिस हो जाएगी। या इफ यू डोंट टॉक अबाउट द डिटेल ऑफ पल्स तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज उपकार है में हाइपरटेंशन के अंदर। उपकार में कर उसके दीजिए। बाद आपने ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन इस तरह के पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन के अंदर यू स्टार्ट विद इंस्पेक्शन एंड देन यू डू सुपरफिशियल palpation, and in deep palpation you check for the fundal height, lie of the patient, lie of the baby and presenting part of course। और फिर आप उसका एस्टिमेटेड बेबी वेट देखते हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देखते हो, और फिर आप उसका फीटल हार्ट रेट पे कमेंट करते हो। तो इसके अंदर ये सारा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेबीज IUGR और कॉम्प्रोमाइज शी शुड नॉट हैव एनी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अननोइंगली, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अननोइंगली फीटल डिस्ट्रेस भी कॉज कर सकता है और उसका खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो उसके अंदर आपका फिर सो जब आप एग्जामिनेशन कर रहे होते हो तो आप साथ साथ उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी देख रहे होते हो और आप उस पर भी फिर बाद में कमेंट करते हो। और उसके अलावा ये कि रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन आई थिंक वाज ऑल राइट।
इन्वेस्टिगेशन हम अभी डिस्कस करते हैं। इसमें किसी ने कुछ ऐड करना है तो बता दें, या कोई क्वेश्चन करना है तो फिर बता दें, फिर हम इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन सना हमसे के करके दोबारा से मांगेंगी। जी सना। Complete blood count with the recent date and time, hemoglobin, total leukocytes count, and the ठीक है, platelet count. हीमोग्लोबिन 11 है और बाकी सारा कुछ ठीक है। Okay, HP surface antigen anti-HCV. नेगेटिव। थोड़ा सा Okay, ऊंचा बोलोगे सना, सॉरी माइक के करीब है। OGTT done or जी, not? ओजीटीटी इसका नॉर्मल है। Okay, and midstream urine in which I want to check any pus cells, any proteinuria, any. यूरिन प्रोटीन +2 है। फर्स्ट सेल 6 to 10 है। Okay, okay, LFTs, RFTs, नॉर्मल है। normal. Okay. Um, मैडम अभी तो उसका प्रीटेंड करेंगे। ओके मैडम, डेटिंग स्कैन और एनॉमली स्कैन, एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इन दैट? जो इसका डेटिंग स्कैन है उसके अकॉर्डिंगली तो ये 32 वीक्स ही है, और एनॉमली स्कैन भी नॉर्मल है। ओके, रीसेंट ग्रोथ स्कैन। रीसेंट स्कैन, ग्रोथ स्कैन जी तो नहीं होता है ना, सीरियल ग्रोथ रीसेंट स्कैन होता है और एक सीरियल रीसेंट ग्रोथ, स्कैन होता है। रीसेंट स्कैन, तो रीसेंट इसके अंदर जो रीसेंट स्कैन है उसके अकॉर्डिंगली इसका जो बेबी का वेट है वो 1 kg है, और 29 वीक्स के पैरामीटर्स हैं। 30 29 वीक्स 20 के। 29। 29। ओके मैडम, अल्ट्रासाउंड डॉपलर डन और नॉट? अल्ट्रासाउंड डॉपलर जो है ना वो ठीक है, एसडी रेशियोज ओके। ओके ओके। मैडम बस, क्योंकि मैंने प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो इसलिए नहीं मांगा क्योंकि आपने मुझे +2 दे दिया है, इसलिए मैंने नहीं मांगा। आप और पूछो ना जो जो मांगना है, जस्टिफिकेशन पे बाद में बात करेंगे। सीरम क्रेटिनिन और ईसीजी डन और नॉट? सीरम क्रेटिनिन तो आपने पूछ लिया था ना आरएफटीज में, और ईसीजी भी ठीक है। ईसीजी तो नहीं अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ओके मैडम बस। और क्या रह गया सना का? मैडम वायरोलॉजी। वो उन्होंने मांग ली थी वायरल। यूरिक एसिड नहीं मांगा। यूरिक मैम एसिड। पैड पैड मैडम प्रोफाइल पूरा होना चाहिए ना। क्या चीज यूरिक नायला? पैड मैम प्रोफाइल पूरा यूरिक होना एसिड और एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो नहीं मांगेंगे? जी। हाँ काफी कुछ। सीरम यूरिक एसिड नहीं मांगा। आप एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो मांग लो, या आप 24 आवर्स प्रोटीन यूरिया भी मांग सकते हो। उससे पहले 6 to 10 पस सेल्स है, तो आप यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी मांगो। ठीक है ना? जी जी। देखो, जहां पर जो चीज आपको एबनॉर्मल मिलेगी ना, आपने वहीं पे उसका, ये मेरा ख्याल है, मेरा इन्वेस्टिगेशन पे 1-2 लेक्चर्स ऑलरेडी है मेरे चैनल के ऊपर। सो जहां पर जो चीज आपको गलत मिल गई, अगर यूरिन में कहीं पे आपको पस सेल्स मिल गए, उधर ही आपने कल्चर सेंसिटिविटी मांग लेनी है। फॉर एग्जांपल कहीं पे एलएफटीज खराब मिल गए हैं तो वहीं पे पीटीए पीटीटीआई एनआर करा के फारिग हो जाओ। कहीं पे किसी ने आपको एचसीवी पॉजिटिव दे दिया है, उधर ही एलएफटीज मांग लो, ताकि वहीं पे वो चीज ठीक हो जाए। कहीं पे आपको अनीमिया दे दिया है, 10.5 से कम एचपी दे दिया है, उधर ही उसका सारे आयरन और टीआईबीसी वगैरह का प्रोफाइल मांग लो, एंड इफ नीडेड एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वहीं पर वही चीज मांग लें। ठीक है। सो अगर, और इसके अलावा आप पूछ सकते थे, देखो ईसीजी की बात आप तब करो कि अगर आपको पहले वाला कोई रिकॉर्ड है और उसमें हाई ब्लड प्रेशर है। अब टीन एज प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर, और जिसका पहले बीपी भी कभी ज्यादा की हिस्ट्री नहीं है, तो उसमें आपने क्या करना करके ईसीजी। अच्छा, उसके अलावा ये कि सीरम यूरिक एसिड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस।
और एक चीज और भी, हाँ, फिर ट्रीटमेंट टिकट, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड, अभी का तो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड मांगो, अभी क्या ट्रीटमेंट टिकट ले रही है वो। एंड देन यू जस्ट आस्क्ड अबाउट द रीसेंट स्कैन एंड द डॉपलर स्कैन, यू शुड हैव आस्क्ड अबाउट द सीरियल ग्रोथ स्कैन्स, क्या पता वो 32 वीक्स पे, 28 वीक्स पे भी उसका डॉपलर हुआ, ब्लड प्रेशर आता था तो 28 वीक्स पे भी हुआ। और फिर उसका, बिकॉज 28 वीक्स के बाद अगर अगर बीपी ज्यादा ही रह रहा है तो सीरियल ग्रोथ स्कैन हुए हैं जिसमें 28 वीक्स, 30 और 32 वीक्स है, जो कि 2 वीकली होते हैं। तो ये आपने पिछला बहुत जरूरी मांगना था, ये नहीं मांगा तो यू नो इट इट इज अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। ठीक है, तो इसकी जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम और एसजीपीटी होगा इसका? एसजीपीटी होगा इसका? SGPT वो तो मांग लिया ना लेफ्टीज में। ओके मैम। SGPT वो बाकी सारा तो ALT ST वो सारा कुछ मांग लिया हुआ है उसके अंदर, इन्होंने LFTs में। ठीक है, और ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड मांगे तो वो हो। तो फिर अब और किसी कुछ चीज ने कुछ ऐड करना है इस इन्वेस्टिगेशन में? आई होप यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग नाउ। प्रोटीन यूरिया के लिए जो आप वार्ड में कराते हो वो मांगो, कुछ लोग जो भी, अगर आप रेशोज वाला कराते हो वो करा लो, 24 आवर्स प्रोटीन यूरिया कराते हो वो करा लो। बट यस, इफ देयर इज प्लस प्रोटीन्स इन द यूरिन तो वो, एंड स्पेशली विद हाइपरटेंशन, इट्स बेटर टू रूल इट आउट कि ये कहीं प्री एक्लेम्पिया की तरफ तो नहीं जा रहा। ठीक है, चलो सना, लेट्स डू द मैनेजमेंट क्विकली, ताकि उसके बाद बाकी हमारे प्रेजेंटर्स मैम फिर करेंगे। अभी इसका जी, ब्लड प्रेशर बता दें, करंट इसका ब्लड प्रेशर। पेशेंट का जो आज का, बिकॉज एफ शी इज इन द एग्जाम, और सुबह का जो ब्लड प्रेशर है वो 150/100 है। और क्या चाहिए आपको? मैडम उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको, उसकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स चाहिए मुझे प्लीज, कब पिछले की? 24 आवर्स की, पिछले 24 आवर्स की। ओके, यस्टरडे की उसकी कितने वक्त की चाहिए? मैडम उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करूंगी ना मैं, एडमिट करूंगी तो उस वजह से। आपको हाउ मेनी रीडिंग्स चाहिए? एटलीस्ट 6 रीडिंग्स। 6 रीडिंग्स अब मैं दूं? अच्छा, नहीं, दो भी काफी है। 140/90 सुबह था, 150/100 शाम का था, और आज सुबह का भी 150/100 है। वैसे ओके। मैम रिकॉर्डिंग जो होती है 4 आवरली करनी होती है ना बीपी देखो की। इसके अंदर, यस मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर आपने जो है ना पहले तो मांगना है कि जिस दिन वो एडमिट हुई उस दिन की रीडिंग्स क्या एडमिट है, हुई तो हाँ। ताकि आपको इंटेंसिटी ऑफ द होल थिंग पता चले। ये नहीं है कि हर पेशेंट में 4 आवरली होता है। ठीक है, अगर तो माइल्ड हाइपरटेंशन है या मॉडरेट है, इसके अंदर माइल्ड मॉडरेट सिवियर वाला ही है ना, माइल्ड और सिवियर ही अब तो रह गया बल्कि। तो जी। अगर तो सिवियर वाला है और वो एडमिटेड है और शी इज ऑन, यू नो शी इज नॉट येट ऑन मेडिसिन, तो फिर तो आप उसका 4 नहीं करोगे। बट अगर मेडिसिन से कुछ कंट्रोल हो गया तो दिन रात उसका बीपी तो नहीं करते रहना ना, वार्ड की स्टाफ को और भी तो काम है। तो फिर आप 3 टाइम्स अ डे या 2 टाइम्स अ डे पे शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन आपने पहले पूछना है उसका एडमिशन के वक्त क्या बीपी था, तो सो दैट यू कैन कैटेगराइज कि वो उस वक्त माइल्ड हाइपरटेंशन था, सिवियर था। और उसके बाद अब आप फिर आप कहोगे कि अच्छा उसकी, अगर वो फॉर एग्जांपल उस वक्त सिवियर हाइपरटेंशन के साथ वो एडमिट हुई थी, और फिर आगे आप उसको कर लोगे, आप उसे यस्टरडे का फिर रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंगली पूछ लोगे, क्योंकि मेडिसिन भी तो वार्ड में शुरू हो गई ना। और क्योंकि ये भी हो सकता है कि माइल्ड हाइपरटेंशन है, जरूरी नहीं कि हर सिवियर हाइपरटेंशन ही एडमिट हो सकता है वो माइल्ड हाइपरटेंशन है, IUGR है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए वो एडमिट हुई हो। अगर वो सिर्फ हाइपरटेंशन होता तो डेफिनेटली फिर माइल्ड हाइपरटेंशन पे तो एडमिशन ना होता। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। Okay, madam. I will admit my patient. I will offer support to the patient, explain the diagnosis that she is having a pregnancy-induced hypertension, and I will admit my patient, and I will involve multidisciplinary team in which me as a obstetrician and a physician, anesthetic, and the neonatologist. I will tell her about the some fetal-maternal risk. There is risk of the placental abruptio, which is 2 to 5%, risk of the HELLP syndrome, risk of the pulmonary edema, risk of the operative delivery. In fetal risk, there is risk of the preterm delivery, IUD, fetal distress during labor, and the low birth weight. I will start the tablet labetalol 100 mg BD. My aim is to keep her blood pressure level is 135/85 and to take the pregnancy till term. And I will be vigilant in admission. I will monitor the maternal and the fetal. In maternal, I will monitor the vitals.
urine output chart, and I will inquire about her the sign and symptom of the preeclampsia in fetal monitor. हम्म। जी सना। सना का मेरा ख्याल है वो डिस्कनेक्ट हो गया फिर से। जी सना। कोई और बोल दे जल्दी से मैनेजमेंट। मैडम सना मैं का बोल शायद दूं? डिस्कनेक्ट हो रहा है। I जी will जी चलो सना का फिर से। हम्म। once my patient gets stable, I will discharge her home and instruct about her the she should take antihypertensive and keep eye on the fetal movement and the pattern of the growth. हम्म। And there is a sign and symptom of the preeclampsia, she report to the hospital and follow up every 2 weekly. On हम्म। each, I will check her vitals and check her hydrophundus, inquire about her fetal movement, and check the blood pressure record and do her the labs if clinically indicated, like proteinuria, LFTs, RFTs, and the serial हम्म। growth scan every 2 weekly because the risk of the IUGR. And हम्म। at 36 weeks, if the Doppler if the Doppler finding is normal, and मैडम डॉपलर पे कोई एप्स एंड रिवर्स या कुछ इस तरह की फाइंडिंग? मैंने कहा था कि नॉर्मल है एसडी रेशो। Okay, okay, then I will discuss the 36 weeks. I will discuss the time of delivery, mode of delivery, and the breastfeeding and the contraception. I will ठीक है plan my चलो delivery गुड। after. अच्छा सना ठीक है आपका योर मैनेजमेंट इज गुड। थोड़ी सी एवरेज सी है। वही बात है कि जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं अच्छा इसमें करोगे यू कैन नॉट पास इट। अदरवाइज यू आर कवरिंग एवरीथिंग ना। व्हाट डू आई एक्चुअली मीन बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी इस वक्त मैंने आपको सबसे बेसिक ही केस दिया पीआईएच का, क्योंकि हमारा आज की क्लास का ये फर्स्ट सिनेरियो है। अभी हमारे दो प्रेजेंटर और भी बाकी हैं इसलिए। लेकिन इसके अंदर मैं आपको क्विकली बताती हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने मैनेजमेंट भी कैसे बोलनी है हाइपरटेंशन में। देखो अगर वहां पर पेशेंट है ना पीएमएच का, आपने अपनी थ्योरी भी दिखानी है, आपने अपने प्रैक्टिकल अप्रोच भी एग्जामिनर को बतानी है। थ्योरी का मतलब ये है कि आप की बातों से एग्जामिनर को एविडेंस राइट। आप कोई भी वार्ड में बैठे पेशेंट को नहीं मैनेज कर रहे हो। दिस एंड नॉन डिग्री वाला बिकॉज आपने बात करनी है एविडेंस बेस्ड, आपने बात करनी है गाइडलाइन से। अब आप एग्जामिनर को कैसे हिंट कराओगे कि यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ योर गाइडलाइंस व्हेन यू आर सेइंग ओके फाइन। आपने चलो इन्वेस्टिगेशन फॉर एग्जांपल आपको सारी मिल गई है, आपको मैंने एक प्लान ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली दे दिया। एक एम नहीं होता कि जी जैसे हमने शुरू में पिछली क्लास में बात यूट किया है तो यू डेफिनेटली ट्रीट द यूट कैन, विल सॉर्ट आउट कि प्रोटीन यूरिया क्या है। बिकॉज इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी मैनेजमेंट फर्क है हाइपरटेंशन विद प्रोटीन यूरिया एंड हाइपरटेंशन विदाउट प्रोटीन यूरिया। ठीक है तो ये आपकी मैनेजमेंट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को रूल आउट करो। अच्छा उसके बाद आपने ठीक है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व कर ली एंड देन यू सेड कि मैं आई टेक हर टू टर्म एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल विद फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग। ये तो आपने एक माइंड मैप दे दिया। बट नाउ व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग दिस माइंड मैप या ये एम ऑफ मैनेजमेंट को जब आप प्लान पूरा बनाकर बताओगे तो उसके अंदर अब आपने देखो जो हमारी पीआईएच की ना इसकी गाइडलाइन है उसके अंदर आपको भी पता है कि टेबल्स बने हुए हैं बकायदा। उन टेबल्स में बकायदा इंपॉर्टेंस है एक एक चीज की। किस पेशेंट को एडमिट करना है, किसको नहीं एडमिट करना, एडमिट करने के बाद हर कितनी देर बाद करना है, बीपी हर कितनी देर बाद करना है, और
कराना है प्रोटीन यूरिया को क्वांटिफाई कैसे करना है, प्रोटीन यूरिया को रिपीट कब करना है, हर एक की डिफरेंट चीज है। यानी कि माइल्ड हाइपरटेंशन का अलग है, सिवियर हाइपरटेंशन का अलग है। माइल्ड हाइपरटेंशन विद प्रोटीन यूरिया का अलग है, सिवियर हाइपरटेंशन विद प्रोटीन यूरिया का अलग है। इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। हमें उन गाइडलाइंस के मुताबिक करना है। अगर कहीं पर है कि 15 मिनट के बाद बीपी करना है, तो आपने बोलना है कि 15 मिनट के बाद टिल बीपी बिकम स्टेबल, फिर मैं 4 आवरली करूंगी या जिस तरह भी करूंगी। आपको पता हो कि आपने बीपी किस आपका चलो स्टाफ करे या आपके डॉक्टर करे, व्हेन आर यू विजिटिंग द पेशेंट, वेन एवर यू आर विजिटिंग द पेशेंट, आप उसको क्या क्या ऑर्डर कर रहे हो या उसकी क्या क्या चीज नोट कर रहे हो। आपने उसका प्रोटीन यूरिया अगर एडमिशन पे कराया है, तो अगला प्रोटीन यूरिया कब कराना है, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू हियर। अच्छा, उसके बाद ये तो प्रोटीन यूरिया की बात होगी, जो बाकी डिटेल टेस्ट है उसके LFTs RFTs वो कब कब कराने हैं। तो आपने सबसे पहले तो इस चीज को बोलो कि ये आपका केस क्या है। इट जस्ट यू नो इट इज हाइपरटेंशन, इट्स नॉट प्री एक्लेम्पशिया। तो आपने उस चीज को तो रूल आउट ही नहीं किया। तो तो जब तक आप ये सारी कैटेगरीज जो आपकी गाइडलाइन के टेबल पे बनी हुई है आप उसको नहीं लेके चलोगे, तो देर इज नो पॉइंट इन इवन टॉकिंग अबाउट हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। एक चीज, दूसरी चीज, ये एक आपके पेशेंट को साथ ही IUGR भी है। तो IUGR के एलिमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ लेके जाओ, बिकॉज शी इज अ केस ऑफ हाइपरटेंशन, यू नो द कॉज ऑफ IUGR। दिस पेशेंट मोस्ट प्रॉब्ली इज गोइंग टू डेवलप ST रेशियो का प्रॉब्लम लेटर ऑन, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी इस वक्त तो नहीं है। तो इस वक्त तो हम जाहिर बात है उसको वैसे रेगुलर सीरियल ग्रोथ स्कैन्स लेके चलेंगे, एंड द मोमेंट शी डेवलप्स प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी तो हम इसकी फिर अकॉर्डिंगली आइदर एंड डायस्टोलिक फ्लो या रिवर्स है, एब्सेंट या रिवर्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसका डिसीजन लेंगे। इफ नॉट तो फिर ऑब्वियसली एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल। तो आपने जब भी बात करनी है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी की, एंड व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, अगर आप इस तरीके से नहीं बोलोगे तो आप मतलब होगे कैसे। जब आप एक इंचार्ज हो, फॉर एग्जाम्पल यूर सीनियर रजिस्ट्रार इन योर डिपार्टमेंट, एंड उस दिन 24 आवर्स की आपकी कॉल है और आपके वार्ड में हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी वाज एडमिटेड विद दिस प्रॉब्लम, और आप ही को नहीं पता कि उसका बीपी कितनी देर के बाद करना है, उसका प्रोटीन यूरिया रिपीट आप पहले सबसे पहले यही देखोगे ना, इसका लास्ट प्रोटीन यूरिया कब का हुआ है, इज इट टुडे और इज इट अ वीक बैक, डज शी नीड टू गेट द प्रोटीन यूरिया डेली और नॉट। या ये तो फिर गाइडलाइन के मुताबिक, ये तो नहीं हर पेशेंट में हम प्रोटीन यूरिया खिलाई चले जाए, ठीक है। तो आपने इन सारी चीजों को उसी तरह से ही लेके चलना है। तो नेवर टेक इट इन अ वे एग्जाम में भी और अपने डिपार्टमेंट्स में भी, व्हेन यू आर इन द हॉस्पिटल आल्सो और व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लिनिक, कि ये केस हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी का आ गया तो मैं बस इसको हर तरह हर हाइपरटेंशन के वैसे ही ट्रीट करूंगी। सो आपने उसको कैटेगराइज करना है और उसके बाद आपने बाकी बाकी आई थिंक इट वाज ऑल राइट, ठीक है। तो मैंने क्विकली इसलिए बातें बता दी ताकि हमारी जो अगली प्रेजेंटर है उनसे जब हम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे तो उनको उसको इसी पैटर्न में फिर बोलना, ठीक है सना। जी जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ठीक है। सो अब आपने हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट आपने और सबसे पहले तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, देखो जब भी आप एग्जाम में बात करोगे ना, मैनेजमेंट बोलना शुरू करोगे, इट्स नॉट ओनली फॉर एग्जाम, वेरी फ्रेंकली, व्हेन अ पेशेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन अ क्लिनिक, पेशेंट भी क्या सुनना चाहता है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द डायग्नोसिस, राइट। तो आपने इसमें भी सबसे पहले डायग्नोसिस तो बोलो कि इट्स माइल्ड हाइपरटेंशन विद प्री एक्लेम्पशिया या इट्स जस्ट प्री हाइपरटेंशन या व्हाटएवर। तो आप उसको बताओ तो सही कि उसे है क्या, एंड देन बिकॉज इट इज फॉर एग्जांपल इट इज माइल्ड हाइपरटेंशन विद प्री एक्लेम्पशिया, तो फिर आप कहोगे कि एज इट इज माइल्ड हाइपरटेंशन विद प्री एक्लेम्पशिया, so that is why she needs admission, and there is a complication added to it, which is the baby is smaller for the gestational age, which needs more monitoring. तो इसलिए मैंने उसे admit किया because of the possible complications, this and it's a high risk case. प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेट्रिक्स में हमेशा आपने डायग्नोसिस एंड इट्स अ हाई रिस्क और लो रिस्क प्रेगनेंसी, एंड देन अबाउट द एडमिशन और नो एडमिशन एंड पॉसिबल फीटो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, इन 4 चीजों से आपने अपनी मैनेजमेंट या अपनी बात स्टार्ट करनी है। जब एग्जामिनर बोलेगा कि हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट, तो ये 4 चीजें कवर करना बहुत जरूरी है। इट्स लो रिस्क और हाई रिस्क प्रेगनेंसी, व्हाट इज द डायग्नोसिस, व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, आइदर यू आर गोइंग टू एडमिट द पेशेंट और नॉट, इफ यस देन व्हाट्स द रीजन फॉर एडमिशन, ठीक है। ये 4 चीजों से आपने अपनी मैनेजमेंट हर सूरत शुरू करनी है। Excuse me, और फ्रैंकली जब आप डायग्नोसिस बोलोगे ना, आपका ना तभी माइंड
brain, it starts working accordingly. When you say it's a mild hypertension with preeclampsia, for example, तो आपके माइंड में खुद ब खुद ही वो बातें आना शुरू हो जाएंगी कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। तो ये एक एग्जाम में प्रोसेस अपने आप को करने वाली बात भी होती है कि आप साथ साथ जवाब दे रहे होते हैं और साथ साथ अगले जवाब आपके माइंड में तैयार हो रहे होते हैं, बिकॉज आपने उस वक्त जो जवाब दिया होता है उससे आप खुद भी काफी कुछ चीजों में क्लियर हो रहे होते हो। तो आपने हमेशा इस तरीके से बात स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो गुड। इकरा, मेरा ख्याल है नेक्स्ट हमारी इकरा है। इकरा, इसी केस को एक दफा पूरी मैनेजमेंट अच्छी सी बोल दो। Madam, first of all, I will counsel the patient about the diagnosis that she is having pregnancy, most probably pregnancy-induced hypertension, mild hypertension with preeclampsia, as well as urinary tract infection and small pore gestational age fetus. So this is a high-risk patient. I will admit the patient, and as this patient require monitoring, I will explain the fetal-maternal implications of hypertension, UTI, and as well as small pole gestational age fetus that may be IUGR, IUD, preterm labor, perinatal mortality, morbidity, and mortality. I will involve the multidisciplinary team involving the me as an obstetrician, anesthetist, neonatologist, as well as physician. Then I will start antibiotic for urinary tract infection. I will keep the blood pressure record and start antihypertensive. First line is labetalol 100 mg BD and keep BP record 6 hourly. And then change this accordingly. I will give her steroid cover for fetal lung maturation as this patient is at risk of preterm delivery. As well as I will then madam, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। सो पेशेंट इज इन योर वार्ड, शी इज एडमिटेड। यस मैडम, फिर उसके साथ जो है फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग करूंगी उसमें मैडम आई व्हेन विल विल यू चेक सेंड हर ब्लड होम? प्रेशर. Madam, when patient is stable, her blood pressure is in control range. My target is to keep her blood pressure 130/85, and uh, I will repeat investigation, especially for proteinuria. If all is stable, then I will counsel the patient. Uh, uh, I will discharge the patient with advice of follow-up as well as uh, keeping the record of blood pressure. Then I will follow the patient 2 weekly interval. Uh, at follow-up, I will reevaluate the patient by taking history, examination, as well as investigation and ultrasounds for growth scan, as well as umbilical artery Doppler. If all remain stable, then at 36 weeks, I will discuss the mode of delivery, time of delivery, contraception, breastfeeding, and follow-up. Then if all things remain stable, then I will call the patient at 38 week. I will check I will rule out the CPD, confirm the presentation. If it is cephalic, then I will do the Bishop score and I will induce the patient. आई थिंक ठीक है, आगे भी बात करते हैं, fetal बट यू आर वेरी monitoring, गुड, fetal यू monitoring. वर वेरी गुड। बाकी ये बात करते हैं अभी लेबर और वो सारा कुछ। एक छोटी छोटी चीजें इसको और ज्यादा बेहतर करने के लिए, जब आप लेके चल रहे थे, व्हेन द पेशेंट वाज इन द डिपार्टमेंट, वो आपने अच्छा बता दिया, मॉनिटरिंग हो गई, लैब्स हो गई, वो सारा कुछ, बट यू शुड नो योरसेल्फ कि व्हेन आर यू सेंडिंग हर होम और किस एडवाइस के साथ आप घर भेज रहे हो। 2 weeks के बाद जब पेशेंट आई, डोंट जस्ट टॉक अबाउट डायरेक्टली जम्प टू द इन्वेस्टिगेशन, इंस्टेड स्टार्ट विद द हिस्ट्री। कि आप ऑब्वियसली हर विजिट पे आप उसका हेडेक, विजन, एपिगैस्ट्रिक पेन और वो सारा कुछ तो करोगे ना रूल आउट। So you'll start with history. You'll definitely do the examination. Your own assessment for fundal height is also very, very important, and your own assessment for the weight of the baby is very, very important. So ये चीज आप rule out करोगे। तो आपने हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, एंड देन you'll talk about the investigations जिसमें आपका डॉपलर और प्रोटीन यूरिया
और वो सारा कुछ आ जाएगा। और उसके अलावा, और आई थिंक इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हर एवरी 2 weeks बिकॉज शी हैज गॉट अ IUGR विद हाइपरटेंशन, सो यू कैन कॉल हर 1 weekly ऑल्सो टू कीप अ चेक कि उसका बीपी का रिकॉर्ड क्या जा रहा है। बेशक सीरियल ग्रोथ स्कैन तो 2 weekly होता है, वो वीकली नहीं होता, लेकिन आप उसका एक चेक रखने के लिए तो आप लाइक बुला सकते हो ताकि आप उसका भी हर वीक के बाद एक वो करो, क्योंकि आपने हर वीक के बाद प्रोटीन यूरिया भी कराना है और उसकी लैब्स को भी कंसिडर करना है कि आपने उसकी करानी है या नहीं करानी। तो आप जब हाई रिस्क हो जाए तो फिर विजिट्स थोड़े फ्रीक्वेंट भी हो सकते हैं, तो फिर आप वो कर सकते हो। और इसके अंदर एक एग्जामिनर आपसे ये भी बहस कर सकता है कि इफ शी इज हैविंग माइल्ड हाइपरटेंशन एंड यू थिंक दैट द प्रोटीन यूरिया इज आल्सो बिकॉज ऑफ UTI जो कि रूल्ड आउट भी हो जाता है, देन व्हाई यू एडमिटिंग द पेशेंट। तो उसके अंदर आप डेफिनेटली ये कह सकते हो कि हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया रूल आउट होने तक, बिकॉज 24 hours प्रोटीन यूरिया इकट्ठा करना है, तब तक आई कीप हर इन द हॉस्पिटल एंड विल मॉनिटर हर ब्लड प्रेशर, आई एम गिविंग हर लिबिटोलॉल एंड ऑल। तो वो उसके लिए। एंड सेकेंडली ये कि विच इज गॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो, उसका IUGR है, उसको भी मैं साथ मॉनिटर करूंगी बेबी को, इस वजह से, राइट। सो इसके अंदर दोनों चीजें जस्टिफाइबल है, either you are admitting the patient or you can also justify, लेकिन admission is better especially if there is a complication with hypertension, but you can justify कि if patient is compliant and she is sensible enough to take care of herself, तो वो घर से भी अपना बीपी का रिकॉर्ड एंड देन 24 hours प्रोटीन यूरिया और वो सब करके आपके पास फिर आ सकती है। यू मे नॉट इवन नीड टू एडमिट हर, लेकिन एग्जाम में भी और अदरवाइज भी सेफ डॉक्टर होते हुए इट्स बेटर कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई हुई है तो आप उसको साथ में एडमिट कर दो। यू टॉक अबाउट स्टीरॉयड कवर एंड फिर उसी तरह जैसे इकरा लेके गई थी आगे, और वेन एवर यू आर चेंजिंग द जेस्टेशन पेशेंट इज कमिंग टू यू एट 36 weeks, अगेन टॉक अबाउट द हिस्ट्री, स्पेशली उसके उस वक्त के सिम्टम्स। और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन, योर फंडल हाइट एंड और सारी असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट, और फिर इन्वेस्टिगेशन, और फिर देन यूल टेक हर टू बेशक आप 37 completed weeks एंड 38 weeks पे आप प्लान कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन द मैनेजमेंट एंड ऑल। ठीक है। मैम जब और पेशेंट को मैम जब पेशेंट को एडमिट करेंगे तो उसी वक्त उसका एक मतलब ग्रोथ स्कैन भी होगा और डॉपलर डॉपलर फिर जो है अकॉर्डिंगली चलेंगे ना फिर कि हमें वीकली जी, कराना है अदरवाइज के डेली करवाना है। डॉपलर डॉपलर, फिर जी रिजल्ट पे डॉपलर डिपेंड की करेगा ना। फाइंडिंग पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। ठीक है। सो गुड। सो अगर यही पेशेंट, हमारी एक तीसरी प्रेजेंटर भी है, निदा, शी इज हियर, वरना हमारी जो दोनों प्रेजेंटर्स है, इकरा बेशक आप ही बता देना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अब यही पेशेंट है एंड शी इज कमिंग टू यू एट 34 weeks and her protein urea is +3 and she is having severe headache, how will you manage? जी इकरा। Madam, as this patient is now have severe preeclampsia, as there is a significant protein urea 3 plus as well as symptomatic patient. So my aim is to deliver the patient after counseling and after completing this steroid cover. डॉक्टर मैं ऐड नहीं करूँ तो आप इस मैनेज तो करो ना पेशेंट को। डॉक्टर अरूबा Madam, मैं डॉक्टर जी निदा। जी मैडम। जी आप बताओ, आप बता दो इसकी मैनेजमेंट जी। Yes, ma'am. As she is at 34 weeks and she her blood pressure is मैम आपने ब्लड प्रेशर कितना बताया इसका? 150 110। 150 110 and she has a complaint of headache. So as this is a case most likely with the immunodeclensia, so first of all we will admit the patient in high dependency unit, and as her blood pressure is uncontrolled we will manage the blood pressure with with fast acting IV antihypertensive, which in which first line is IV labetalol. We will give it IV labetalol 20 milligram IV over 2 minutes, and then we'll monitor her BP after 10 minutes. If it is not controlled, I will again double the dose. Like I will give IV 40 milligram labetalol. I will again check the BP after 10 minutes. If it is controlled, then we will move forward. If not, then we will again double the previous dose. Like I will give IV labetalol 80 milligram over 2 minutes. In this is first line. If BP not controlled, we will move toward the second line, which is IV hydralazine. After giving the maximum dose of IV hydralazine, we will move towards third line, which is per oral nifedipine tablet. If with these three medications, BP
not controlled, we will label it as a refractory blood pressure, and we will manage the patient with the physician and multidisciplinary team involvement, and we will counsel the patient regarding fetal maternal risk, in which maternal risk we will counsel the patient about eclampsia, HELLP syndrome, CVA, acute renal failure, placental abruption, maternal mortality, and the risk of operative delivery, in which the risk of C-section is 50 to 70%, and accordingly, the fetal risks are sudden intrauterine fetal deaths, IUGR, which includes 40%, and preterm delivery. Now, aim of my management is to control her blood pressure, to prevent CVA, and to give her anticonvulsants in the form of magnesium sulfate to prevent the fits, and to deliver the baby, to plan her delivery with control with the fetal-maternal monitoring. We will also give her IV magnesium sulfate in the form of loading dose. We will give 4 gram of magnesium sulfate in IV, and 12 cc normal saline or distilled water over 10 to 20 minutes. And then we will monitor the patient. Ideally, we should monitor the patient with cardiac monitor. If not facility available, then we will monitor her blood pressure every 15 minutes. If it is stable, then we will monitor her BP after 1 hourly. ठीक है। अच्छा निदा, आपको आपका अच्छा है स्पीच, आपको आता भी बहुत है, लेकिन आपको ना आंसर नहीं करना आता। बात ये है कि वाइवे में भी, और वही बात है आपकी सारी, इट्स योर नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। योर नॉलेज इज वेरी गुड, योर स्किल मस्ट बी वेरी गुड, बट आपकी बातों से नॉलेज ज्यादा लग रही है, स्किल कम लग रहा है। देखो, आप सबसे पहले तो मैंने एक आपको इमरजेंसी केस बताया, इट इज एन इमरजेंसी, जिसमें जब ऐसा पेशेंट लेबर रूम में आता है तो आप सारा कुछ छोड़ के 2-3 लोग उस पर लग जाते हैं। आपको पता है कि वी हैव अ होल एक मॉड्यूल, एक अलग ही ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज का। when you are dealing with an obstetrical emergency, examiner should know that you are dealing with an obstetrical emergency। आप सबसे पहले बोलो, जब आपको ये सिनेरियो दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, क्योंकि अगर इंशाल्लाह जब एग्जाम में अच्छा वाइवा हो रहा होता है तो वहां पे इसी तरह सिनेरियोस बदले जाता है। वो कहते हैं अच्छा यही पेशेंट अगर 12 वीक्स पे आती तो आप क्या करते, ये पेशेंट अगर प्रेगनेंसी से पहले आती तो आप क्या करते हैं, यही आपका पेशेंट है, अब ये इमरजेंसी में आ गई है 30, जैसे मैंने अभी कहा कि यही पेशेंट है, सेम पेशेंट 34 वीक्स, और मैंने आपको 160-110 बीपी दे दिया, एंड शी हैज गॉट सिवियर हेडेक, व्हिच मींस के शी कैन हैव फिट। हॉस्पिटल में अगर ऐसा पेशेंट आया और उसे फिट पड़ जाए तो एक बहुत बड़ा फेलियर है हॉस्पिटल का। अगर आपके पास तो ये एक बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। अगर फिट हो जाता है तो वी नो के मोर्टेलिटी ही बहुत ज्यादा है पेशेंट की, नॉट ओनली मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी ही उसमें, मैटरनल मोर्टेलिटी अटैच्ड है बकायदा। सो आपने इसका स्टार्ट ही ऐसे करना है कि शी इज अ केस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी, ठीक है? तो फौरन आप जो जो लोगों को कॉल फॉर हेल्प करके इन्वॉल्व कर लोगे, you'll take the IV line, you'll counsel the attendants about the whole situation, कि these things can happen, these are the possibilities which can happen, BP ज़्यादा है, she can have eclampsia, she can have cerebral hemorrhage, और मोटी मोटी आपने 2-4 complications, और ठीक है maternal और फिर fetal भी बोल दो, and then you'll do control blood pressure। ब्लड प्रेशर कंट्रोल को इतना लंबा ना एग्जाम में बोलो कि अगर 10 मिनट का वो स्टेशन है तो आप सिर्फ लेबिटेलॉल ही बोल सको, बिकॉज आपने सिर्फ पेशेंट का ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं करना, आपने उसको फिट भी नहीं पड़ने देना, आपने उसका बेबी का भी देखना है, एंड देन आपने उसको डिलीवरी भी प्लान करनी है। तो आपकी तरफ से तो ये होना चाहिए, जो कि होता भी है, कि पहली डोज में बीपी बेहतर हो जाता है, एंड नॉर्मली व्हाट यू डू इज दैट यू गिव शॉर्ट एक्टिंग अलोंग विद अ लॉन्ग एक्टिंग डोज, ओरल भी आप उसे दे देते हो। अगर आपने उसको लेबिटेलॉल आपके हॉस्पिटल में दी जा रही है, विच इज वेरी गुड, अगर आप उसको देने में यूज टू हो तो आप डेफिनेटली वही बोलो। और नॉर्मली व्हाट वी डू इज दैट, क्या हम उसमें साथ ही ओरल एल्डोमेट भी दे देते होते हैं पेशेंट को। अगर फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स में, या बहुत सारे हम जो डॉक्टर्स हैं, हम ज्यादा ट्रेंड होते हैं गिविंग हाइड्रोलाजीन फर्स्ट, सो देयर इज नो हार्म, आप उसको पहले हाइड्रोलाजीन दे दो,
जो आप देते हो हॉस्पिटल में वो बिल्कुल ठीक है। आप अगर और नॉर्मली हमने यही देखा है कि दूसरी डोज के बाद तो कभी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक हो जाता है बीपी। तो आप एग्जाम में जरा आगे जल्दी चलो। और आप एग्जाम में बोलने का भी एक ट्रिक होता है कि आप बस जो कर रहे हो बिफोर द एग्जामिनर स्टॉप्स यू, कि नहीं ये नहीं, पेशेंट नहीं ठीक हुआ फिर क्या करोगे, वरना जो आप दे रहे हो आपने ये कहना है पेशेंट ठीक हो गया, ताकि आप आगे चलो, ठीक है। सो आपने कहा, आपने दिया हाइड्रोलिजिन या आपने दिया लेबिटिलॉल का डोज, साथ आपने एक लॉन्ग एक्टिंग दी एल्डोमेट, ताकि उसका बीपी कंट्रोल ही रहे। ये तो शॉर्ट एक्टिंग है ना। तो ये देख के आपको कि ब्लड प्रेशर मैं उसका 100 या उससे नीचे ले आई हूँ, 90 पे आ गया हुआ है, एंड शी इज देयर, और इमीडिएटली स्टार्ट मैग्नी आई वांटेड टू हेयर मोर अबाउट मैग्नीशियम सल्फेट। And now, when you are saying about magnesium sulfate, you'll not just say magnesium sulfate loading dose or maintenance. You have to talk about the monitoring also. Magnesium is a little sensitive thing, right? उसमें जब तक आपको monitoring की knowledge नहीं है या जब तक आपके पास monitoring की facilities नहीं है, तब तक it's better not to give it. ठीक है। तो आपने जितनी इंपॉर्टेंस बीपी कंट्रोल करने की है उतनी ही इंपॉर्टेंस मैग्नीशियम सल्फेट की थी, लेकिन आपने बीपी कंट्रोल करने को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे दी, मैग्नीशियम को ऐसे दिया कि जैसे शायद डेक्सा है, टाइम मिला तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, क्योंकि इस पेशेंट में तो डेक्सा कवर का भी टाइम नहीं होना पूरा। ठीक है। तो आपने उतनी ही इंपॉर्टेंस मैग्नीशियम को तो उतनी इंपॉर्टेंस उसको तो, एंड देन टॉक इन एग्जैक्ट वर्ड्स इन क्लैरिटी दैट व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो आपने अपने जो है उसके अटेंडेंट्स पेशेंट के, उनको भी एक्सप्लेन करना है कि क्यों आप डिलीवरी प्लान कर रहे हो, बिकॉज इमिनेंट एक्लेम्शिया, आपने बता देना है कि इमिनेंट एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की मैनेजमेंट पूरी सेम है। ट्रीट हर एज एक्लेम्शिया, ठीक है ना। क्योंकि अब वही बात है कि फिट नहीं पड़ना चाहिए। अगर इमिनेंट एक्लेम्शिया हॉस्पिटल में आ गया और उसे फिट पड़ जाए तो ये तो बहुत ही बड़ा फेलियर है, ठीक है। सो आपने बता देना है कि सिवियर प्री एक्लेम्शिया नहीं है, ये इमिनेंट एक्लेम्शिया, बिकॉज इसको इतने सिम्टम्स हैं। और साथ ही ये कि आपने मैग्नीशियम दिया है एंड इमीडिएटली फिर प्लानिंग डिलीवरी, तो फिर बोलो डिलीवरी के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। सो हाउ विल यू प्लान डिलीवरी? जी निदा। As patient, my patient is a high risk case. It is a case of immunoeclampsia. So we will plan her delivery. After we will not wait for the complete steroid cover. We will give the first dose of steroid, and we will set her baseline. We will send her PIH profile whole, and we will involve the anesthetist, neonatologist, and hematologist. If her labs come, then accordingly we will manage that, and we will plan the delivery now, because the patient is very high risk, and if we will not deliver the patient, it can have fits and it can have eclampsia. So we will deliver the patient within 24 hours. Also we will meanwhile we will आपके keep पास अगर monitoring the एक्लेम्शिया patient. आता है, for example, you get a patient of eclampsia in your labor room. What is your target? Delivering the baby in 24 hours? As long as the patient, her fits are controlled, we will deliver the patient. In 24 hours? No, आज सुबह वो immediately. आई है तो eclampsia को आप कल सुबह तक डिलीवर करोगे? No, ma'am. We will deliver her immediately. Immediately After मतलब initial management, giving what will you do for the delivery? क्या antihypertensive, करोगे डिलीवरी के लिए? ma'am, we देखो फॉर will. एग्जाम्पल, अच्छा मैं एक चीज की क्लैरिटी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो मुझे पता है आप लोगों के जहन में बड़े क्वेश्चंस, अगर किसी के नहीं आ रहे तो मेरी बात सुन के जरूर आ जाएगा कि इमिनेंट एक्लेम्शिया क्या है, सिवियर प्री एक्लेम्शिया क्या है, माइल्ड प्री एक्लेम्शिया क्या है, और डिलीवरी फॉरन किसमें एक्लेम्शिया में तो करनी है, इमिनेंट में करनी है या सिवियर प्री एक्लेम्शिया में क्या करना है। सो देयर इज अ डिफरेंस। इमिनेंट एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की मैनेजमेंट सेम है। व्हाट इज इमिनेंट एक्लेम्शिया? तो हमें पता है, जाहिर है जिसको फिट पड़ गया बीआईएच के साथ वो तो एक्लेम्शिया हो गया। इमिनेंट एक्लेम्शिया क्या है? हाई ब्लड प्रेशर तो है, प्रोटीन यूरिया भी ज्यादा है, बट बहुत सिम्टम्स है, हेडेक है, उसको डीमा पूरा बना हुआ है, और तो दिस इज इमिनेंट एक्लेम्शिया, जिसके अंदर आपको बिकॉज ऑफ दीज सिम्टम्स मैग्नीशियम लगाना पड़ गया है ताकि उसको फिट ना पड़ जाए। दिस इज इमिनेंट एक्लेम्शिया। सो इमिनेंट एक्लेम्शिया और इमिनेंट एक्लेम्शिया को वैसे ही ट्रीट करो जैसे एक्लेम्शिया को। क्यों डिलीवरी करनी है? क्योंकि प्लेसेंटा निकलेगा तो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे और उसकी वो काफी बेहतर हो जाएगी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। कंसिडर इट्स कंसिडर्ड कि ये होगा, ठीक है।
तो डिलीवरी हमने फौरन प्लान करनी है। किस वक्त प्लान करनी है क्लेम्शिया प्री क्लेम्शिया में? देखो, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लेम्शिया को फौरन से सिजेरियन कर दो, ठीक है। उसके अंदर आपको की डिलीवरी की गुंजाइश है। आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, केफेलिक प्रेजेंटेशन है, लाए, सब कुछ ठीक है। पेशेंट इज फॉर एग्जाम्पल प्राइमी, मल्टी के लिए के अंदर तो और भी आसानी है। आपने प्राइमी को इंड्यूस किया, ठीक है, 6 आवर्स में आप असेस कर लोगे। अगर तो वो लेबर में चली जाती है एंड शी इज इन एक्टिव लेबर इन 6 आवर्स और सो, तो फिर ठीक है। अगर वो बिल्कुल लेबर में नहीं जाती तो 6 आवर्स में फैसला कर ली, ठीक है। अगर वो 6 आवर्स में लेबर में गई भी है तो ठीक है, 6 से 8 आवर्स भी हो जाए उसकी डिलीवरी को, बट बट लेस देन 10 और 12 आवर्स में शी शुड बी डिलीवर्ड, ठीक है। तो डिलीवरी की गुंजाइश, इसीलिए आप लोगों ने अपने डिपार्टमेंट्स में देखा होगा, वार्ड्स के अंदर एक्लेम्शिया को भी डिलीवर किया जाता है। एक्लेम्शिया डज नॉट मीन के इमीडिएटली सिजेरियन, आप गुंजाइश दे देते हो, लेकिन 4 घंटों में फैसला कर लिया जाता है। क्योंकि अगर पहली इंडक्शन के बाद वो नहीं लेबर में गई, मोस्टली मल्टीज गो इन लेबर एंड दे डिलीवर इन 6 आवर्स। What I would say is never delay her beyond 6 hours or so, right? Not even 10 to 12 hours. अगर 6 आवर्स पे जाके वो 6 से 8 सेंटीमीटर है तो चलो फिर तो डिलीवरी होने ही वाली है। बट अगर 6 आवर्स पे जाके वो 1 फिंगर या 2 फिंगर या और नहीं कोई फर्क पड़ रहा तो फिर देर इज नो पॉइंट इन डिलेइंग हर, ठीक है। तो एक्लेम्शिया को या इमिनेंट एक्लेम्शिया को तो आपने ऐसे लेके चलना है। सिवियर प्री एक्लेम्शिया इज नॉट लाइक कि आपको बहुत इमीडिएटली कुछ करना है, उसमें आप कंट्रोल भी करते हैं, उसमें आपके पास डेक्सा कवर का टाइम भी होता है। उसमें आप अकॉर्डिंगली, वो फिर आपकी गाइडलाइन के मुताबिक आप चलते हो, जो हमारी हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी की गाइडलाइन है कि आप उसको फिर सिवियर एक्लेम्शिया को, सिवियर प्री एक्लेम्शिया को किस तरह से लेके चलते हो, ठीक है। तो इस फर्क को आपने याद रखना है, ठीक है निदा। दैट इज वाई वार्डो जी में जी आपने देखा होगा कि एक्लेम्शिया को भी आप लोग डिलीवर कर रहे हो, जी मैडम। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है। यस, वी टॉक अबाउट बिशप मैम स्कोर। गुड गुड, इजराइल ने बताया। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट इंडक्शन, सबसे पहले आप उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बोलो। आप बोलो कि आई डू हर बिशप स्कोर, आई विल चेक इफ सर्विक्स इज राइट और नॉट। इफ इट इज ऑलरेडी राइट तो फिर तो सिंटो लग जाएगा, इफ इट इज नॉट तो फिर मैं इंडक्शन करूंगी, ठीक है। गुड खजरान जी। मैम हमने अपने यूनिट में एक्लेम्शिया को हमेशा नॉर्मल डिलीवर किया है, इसलिए मैं सिजेरियन का पूछ रही हूँ कि फिर हम उसमें अच्छा, कौन सा इंटरेस्टिंग देते बात, हैं जी। बिल्कुल गुलरुख, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्लेम्शिया वाली लेबर में चली जाती है। आप उन्हें जेल मैम रखते हो या मैंने इंड्यूस कभी करते हो, सिजेरियन होता हुआ नहीं दो देखा तीन घंटों एक्लेम्शिया में वो का। लेबर में चली जाती है। जी गुलरुख। मैम एक्चुअली माय क्वेश्चन इज कि मैंने कभी सिजेरियन एक्लेम्शिया का देखा नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि जीए देते हैं कि स्पाइनल में करते हैं। जी, एक्लेम्शिया को जी, एक्लेम्शिया को कैसे स्पाइनल देंगे? ओके मैम, ओके ओके ओके। यस मैम, एक्लेम्शिया के कभी लिए तो देखा जी नहीं। देता है। यस मैम, नहीं ओके। देखा, देख लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है एक्लेम्शिया को डिलीवर किया जाए। एक्लेम्शिया के अंदर आपका बहुत लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन होता है। जैसे मैंने कहा कि इंडक्शन की लेबर में नहीं गई तो आप उसका ये नहीं कि आप 2 दिन तक वेट करो या आप उसका 6 घंटों से ज्यादा वेट करो, 4-5 घंटों में हमारे फैसला हो पेशेंट जाता है। हो जाते थे डिलीवर, इंटरेस्टिंग यही बात हमेशा है कि डिलीवर क्लेम्शिया हुआ को है। करके देखो। जैसे कहते हैं ना कि ये नेचर का काम है कि जो मसला कर रहा है उसको अल्लाह खुद ही बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे कोलिस्टेसिस के पेशेंट 37 वीक्स पे लेबर में चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम कर रहे हैं बच्चे को। कोलिस्टेसिस प्रॉब्लम कर रहा है बच्चे को, इसके अंदर प्लेसेंटा और बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है मदर। ये नेचर का काम है, वो इंड्यूस करने की देर है वो लेबर में चल जाती है, बिकॉज नेचर खुद ब खुद इस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो यस, दे डू गो इन लेबर, बट अगेन इसमें बहुत इंथुजियास्टिक भी नहीं होना होता फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर नई लेबर में जा रही या देर हो रही है तो फिर ऑब्वियसली हमने इसको फिर जल्दी डिसीजन लेना होता है। और पोस्टपार्टम कौन बताएगा तीनों प्रेजेंटर्स में से? इकरा, निदा और सना अगर हैं तो जी। पोस्टपार्टम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें तो उतने ही चांसेस, बल्कि ज्यादा चांसेस है उसके हाइपरटेंशन और फिट्स के प्रॉब्लम होने का। जी इकरा, आप बताओ, पेशेंट डिलीवर हो गई है फिर क्या मॉनिटरिंग करेंगे? Ma'am, first of all, we will monitor her for PPH, and we will monitor वेरी her गुड, blood pressure. And then in the first 12 hours, we will send her urine for proteins. वेरी गुड। And as she is in the hospital, we will daily send her PAH profile to see for the improvement. And
We will check her blood pressure. आप बोलोगे कि इसमें अभी भी आई थिंक 40% या कितना चांस है कि इसको PIH की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती है? चांस 40% है। नंबर 2 Especially on आपने third and बोलना है fifth कि day. हेल्प सिंड्रोम भी हो सकता है, तो इसलिए आप उसकी टेस्ट क्यों इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हो? दिस इज गुड कि आपने, बिकॉज जिस तरह मैंने इससे पहले, अच्छा सना बता रही थी या जो बता रहा था, मैंने बताया कि आपने एग्जैक्ट बोलना है कि आपने 24 आवर्स में क्या कराना है, आपने कितने घंटों में क्या करना है। आई एम ग्लैड निदा ने उसी तरह बोला कि 12 आवर्स में मैंने ये करना है। इसी तरह BP का भी बोलो कि पोस्टमार्टम। सेकेंडली, इफ इट वाज इमिनेंट ऑनक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया, तो आप बोलो कि अभी ये पेशेंट कहाँ है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में या आपके नॉर्मल लेबर वार्ड में शिफ्ट हो गई है या पोस्ट नेटल वार्ड में शिफ्ट हो गई हुई है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बोलना, क्या, क्योंकि एग्जामिनर ने ये देखना है कि आपको पता है कि पेशेंट को आपने किधर रखना है, बिकॉज यू विल बी द डिसीजन मेकर ना, कि पेशेंट इज येट इन द हाई डिपेंडेंसी यूनिट और पेशेंट इज शिफ्टेड टू द वार्ड, और वेयर इज शी एंड व्हेन आर यू गोइंग टू डिस्चार्ज द पेशेंट। तो आपने एक एक चीज उसी तरीके से बोलनी है। इसके अंदर अभी तक मल्टी डिसिप्लिनरी कौन कौन इन्वॉल्व है, फौरन आप इसकी एंटी हाइपरटेंसिव बोलो कि किस पे ट्रांसफर हो गई, मतलब अगर वो ओरल एल्डोमेट ले रही थी तो अब क्या स्टार्ट करोगे, डज शी नीड IV येट और नॉट, व्हाट अबाउट मैग्नीशियम सल्फेट। मतलब ये सारी चीजें पोस्टमार्टम में आपने बोलनी शुरू करनी है। आपने कहना है बेबी डिलीवर हो गया है, बेबी हैंड ओवर हो गया पीडियाट्रिशियन को, स्टेज 2 का केयर कर ली, PPH, पेशेंट इज शिफ्टेड बैक टू द हाई डिपेंडेंसी यूनिट, बिकॉज उससे मैग्नीशियम सल्फेट भी जा रही है, वो अभी भी इमिनेंट एक्लेम्शिया या पोस्ट एक्लेम्शिया वाली पेशेंट है। सो चीज या येट इन द हाई डिपेंडेंट, वहां पर मैं क्या करूंगी, BP किस किस तरह से मॉनिटर करूंगी, एंटी हाइपरटेंसिव क्या दूंगी, अभी IV जा रही है या उसको अब ओरल दी जा सकती है। तो ओरल में बोलोगे कि प्रेगनेंसी में वो एल्डोमेट ले रही थी तो अब मैंने उसे क्या स्टार्ट करना है, ये बिकॉज दिस इज व्हाट यू डू एक्चुअली इन योर वार्ड। जब आप राउंड कर रहे होते हो तो आप यही तो चीजें कर रहे होते हो कि एंटीनेटली क्या ले रही है, पोस्ट नेटल क्या ले रही है, और वो सारा करके उसके बाद आपने पेशेंट को जब वो स्टेबल हो गई है, मे बी आफ्टर 12 आवर्स और 24 आवर्स, और आपने उसके टेस्ट कराए, तो फिर शी शिफ्टेड टू द पोस्ट नेटल वार्ड, और वहां पे मॉनिटर करके ब्रेस्ट फीडिंग इनकरेज किया जो भी, और फिर उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज कर गई। ठीक है। सो और फिर आपके पास दोबारा चेकअप के लिए कब आए, घर जाके उसने क्या करना है, उसने BP का रिकॉर्ड कर रखना है, 1 वीक के बाद, चाहे प्रोटीन यूरिया के बाद आपने उसे वापस बुलाया है, और शील कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हर ब्लड प्रेशर, और फिर 40 डेज के बाद एक दफा विजिट कराए, एंड देन यू विल डिसाइड दैट वेदर शी नीड्स टू गो टू द फिजिशियन और नॉट। ठीक है। Ma'am, we will her follow-up will be on 2 weeks. At 2 weeks, we will monitor her blood pressure, her PAH profile, quantify her urine for proteins. Then, if they are raised, we will again follow her at 6 weeks and 12 weeks. Till 12 weeks, if the proteinuria persists, then we will refer the patient to the nephrologist, especially. बस ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, सो गुड। और इस तरीके से आपने, और बस आपको ये इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि ताकि एग्जाम में हर चीज कवर हो, ये नहीं कि एक ही चीज के पीछे पड़ जाना है कि जैसे BP है तो बस उसी के पीछे, आपने एज अ होल पूरे पेशेंट को करना है। ठीक है। Which antihypertensive should be given after? इट डिपेंड्स, आप उसके बाद आप लोग क्या देते हो अपने वार्ड्स में? Ideally, calcium channel blocker देते हैं, but कैल्शियम in the चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही देते हैं, बिल्कुल। तो आप जो देते हो आप वही बोल दो वहां पर। मैम इनका रिव्यू होता है 6 to 8 वीक्स प्रोटीन यूरिया, एंड आफ्टर दैट 3 months तक हम इनका रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। बिल्कुल That is done by the बिल्कुल GP. If it is persist abnormal, then we refer her to the specialist. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड। ठीक है, सो इस तरीके से आपने लेके चलना है। और